Jai Hind everyone. This is Pragati Pandey, your bio teacher, and I'm here with the new part of this chapter, reproduction, in this video. So basically in the previous videos we have gone through the basics of reproduction, types of reproduction, that is sexual and asexual reproduction. Then after we have gone through several modes of asexual reproduction, that was with the help of binary fission, with the help of budding, then after fragmentation, and after that we have gone through the spore formation, then after vegetative propagation. In vegetative propagation we have seen several other modes in vegetative propagation. Basically in vegetative propagation we have gone through the vegetative propagation by root, leaf and stem. In leaf we have seen the example of bryophyllum. In roots we have seen the example of sweet potato, and also in the stem we have seen the example of ginger, potato, etc. And now we will proceed to artificial vegetative propagation. These were with the help of root, stem and leaves. The vegetative propagation which occurs is natural vegetative propagation, and now we will discuss the artificial vegetative propagation. Okay, so let's start. Before going to artificial vegetative propagation, we should learn the advantages and disadvantages of natural vegetative propagation. So basically the advantages of natural vegetative propagation are, since the new varieties are genetically identical. Basically natural vegetative propagation में क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसी प्लांट का, पेरेंट प्लांट का कोई एक पार्ट लेते हैं और उसी पार्ट से जो आउटग्रोथ होता है वो ही न्यू प्लांट को फॉर्म करता है. जैसे कि आपने स्टेम में देखा था, स्वीट पोटैटो का हम एक उसका रूट का पार्ट ले रहे थे, उसको हम उगा रहे थे तो हमें नया प्लांट मिल रहा था. ऐसे ही ब्रायोफिलम के लीव्स में लीफ के मार्जिन्स पे बड्स होते थे, उसको वो ड्रॉप हो जाते थे और फिर न्यू प्लांट ग्रो करते थे. बेसिकली क्या होता था इन सारे कंडीशन में कि जो प्लांट है, पेरेंट प्लांट है, उसका कोई पार्ट है वो डिटैच होकर के उसको अलग से ग्रो किया गया तो वो न्यू प्लांट बना लिया. मतलब यहाँ पे जो पेरेंट प्लांट है और डॉटर प्लांट है दोनों आइडेंटिकल्स हैं. ओके, दैट मीन्स दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. मतलब कि जो जीन्स हैं उस पेरेंट की और उस डॉटर प्लांट की दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम हैं. ओके, सो नाउ लेट्स रीड. दिस इज़ रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्टर टेक्निक टू ऑब्टेन न्यू वैरायटी. यस, बिना पैसों के ये हो जा रहा है, आप जानते हैं, कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. एंड फास्टर टेक्निक है, बहुत ही फास्ट ये चीज़ हम कर सकते हैं कि एक प्लांट के सेवरल रूट्स को, सेवरल स्टेम पार्ट्स को हम अलग अलग ग्रो कर दें और हमारे पास ढेर सारे न्यूमरस प्लांट्स हो जाते हैं. ओके, सो दिस टेक्निक एंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ प्लांट वेराइटी फॉर सेल. सो कंसिस्टेंसी मीन्स रेगुलरिटी. सो बेसिकली इसको बहुत ही ज़्यादा स्केल में प्रोड्यूस किया जा सकता है क्योंकि ये प्लांट के पार्ट से ही हो रहे हैं. तो सेल में जब हम इसको बेचते हैं तो उसमें एक निरंतरता बनी रहती है. ओके, नाउ plants that do not produce viable seeds such as banana, sugarcane and potato can be raised by this technique. Yes, basically that banana, sugarcane and potato, these plants does not have seeds, you know. So those plants which are seedless, they can be raised by this technique. Now we will read the disadvantages of natural vegetative propagation. The plant varieties obtained by this technique lose their vigor and become prone to disease. बेसिकली इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और जेनेटिकली आइडेंटिकल होने के वजह से इनमें डिजीज़ेस होने शुरू हो जाती है. जैसे पेरेंट को कोई डिजीज़ है और अगर हमने सेम प्लांट को, सेम पेरेंट प्लांट को डिटैच करके थोड़ा सा उसका पार्ट हमने नया प्लांट ग्रो किया तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, तो उसमें 100% उसमें संभावना है कि उसमें वो बीमारी होगी ही. तो अगर जब जेनेटिकली कोई चीज़ सेम है, दो चीज़ें और एक में डिजीज़ है तो दूसरे में भी होनी स्वाभाविक है. तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. नाउ सिंस द ऑफस्प्रिंग आर क्लोन्स ऑफ द पेरेंट, यस,
offspring are the co-clones of the parent. The risk of passing a deformity from parent, yes, that is disease which is present in the plant, is definitely present in the offspring also. Okay, now we will move to artificial vegetative propagation. Now artificial vegetative propagation. Basically, artificial method of vegetative propagation is widely used in agriculture and horticulture. Basically, it is used in agriculture and horticulture. Agriculture is what? In production of plant, and horticulture, that is production of flowers. Okay, there are majorly four ways to perform artificial vegetative propagation. Basically artificial vegetative propagation में क्या होता है, जो नेचुरल है उसमें जो ग्रोथ हो रहा है वो इंडिविजुअल हो सकता है, मतलब नेचुरल कंडीशन में हो सकता है. नेचुरल कंडीशन, नेचुरल जो थिंग्स हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन आर्टिफिशियल में ह्यूमन का कहीं ना कहीं नीड है, मतलब ह्यूमन उसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा उसको उसके ग्रोथ में. ओके, सो लेट्स सी दैट लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर. ओके, सो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मैंने बताया कि इसमें ह्यूमन की नीड पड़ेगी. अ नंबर ऑफ आर्टिफिशियल मेथड आर यूज टू प्रोपगेट प्लांट्स इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. मैंने पहले बताया artificial vegetative propagation. In this type of propagation we will learn layering, cutting, grafting, then after tissue culture. Okay, let's discuss layering. लेयरिंग में आप देख रहे हैं ये एक प्लांट है, इसके प्लांट के एक स्टेम को थोड़ा सा नीचे करके उसको मिट्टी में दबा दिया जा रहा है, उसको मिट्टी में दबा दिया गया, आप देख रहे हैं. और मिट्टी जहाँ पे है यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी के प्रेजेंस में ये रूट्स ग्रो करने लगेगा. आफ्टर अ फ्यू डेज द कवर्ड पोर्शन ऑफ द स्टेम यूजुअली प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट. ओके, और फिर इसको यहाँ से डिटैच कर दिया गया और ये एक नया प्लांट ग्रो कर गया. दिस इज़ द टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन विच इज़ लेयरिंग. जैसा कि एग्जाम्पल जैस्मिन में होता है. दिस मेथड इज यूज टू प्रोपगेट प्लांट्स सच एज जैस्मिन एंड इट अकर्स नेचुरली इन नाउ ब्लैक raspberries. It is also occur in black raspberries. Now cutting. For cutting we have to select a healthy young branch with a few nodes and internodes. Basically इसमें क्या करना है, हमको जो प्लांट का पार्ट होगा उसमें नोड्स इंटरनोड्स बहुत कम हो और उसको हम काट लेंगे. लेयरिंग में हमने क्या किया था, मिट्टी में हम आधा पार्ट दबा दे रहे थे. कटिंग में हमने उसको कट कर लिया अलग और उसके बाद हमने उसको अलग से ग्राउंड में उसको प्लांट कर दिया. ओके, कुछ दिन बाद क्या होगा कि इसमें रूट्स ग्रो करने लगेंगी, एडवेंटिशियस रूट्स आने लगेंगी और ये प्लांट फिर से ग्रो करने लगेगा. इसका एग्जाम्पल होता है रोज़. रोज़ आप अपने घरों में लगाते होंगे, आप गुड़हल का फूल भी लगाते होंगे, तो ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं. सो नाउ आवर थर्ड पॉइंट वाज ग्राफ्टिंग. ओके, अब हम ग्राफ्टिंग देखेंगे. ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक प्लांट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लांट है, आप देख रहे होंगे एक प्लांट है और इस प्लांट को यहाँ पे दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया है. आप देख सकते हैं दो टुकड़ों में इसको तोड़ दिया गया है. इसमें क्या होता है, जो अपर पोर्शन होता है उसको हम सियॉन बोलते हैं. बेसिकली क्या होता है, प्लांट को तोड़ दिया जाता है और तोड़ने के बाद क्या होता है, वो टू अलग अलग पार्ट्स में टूटता है. जैसे कि आप कलम करते हैं, इसमें क्या होता है, ये एक मेथड है जिसमें प्लांट को इस तरह से तोड़ दिया जाता है और दो अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स को जॉइन करके उनको बांध दिया जाता है. कुछ टाइम बाद देखा जाता है कि वहाँ पे रूट्स का फॉर्मेशन होने लगता है और हम क्या देखते हैं कुछ दिन बाद कि जो जॉइंट पार्ट हमने किया था, जॉइंट किया था जो पार्ट, उसमें क्या होता है, रूट्स का डेवलपमेंट होने लगता है. मतलब नीचे से रूट से वो
उसको मिनरल्स मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस फिगर में कि जहाँ पे बांधा गया है वहाँ से देखेंगे आप ऊपर के साइड दो तरह के दो पार्ट में प्लांट ग्रो किए हैं। एक ओरिजिनल प्लांट था जिसका रूट था, एक उसका प्लांट था, और जो हमने जोड़ा एक दूसरा प्लांट हो गया। मतलब एक ही प्लांट में हमने दो तरह की स्पीशीज़ ग्रो कराई। एक जैसे क्या है, एक प्लांट है उसको हमने कट किया है डाउनवर्ड से, उसको हमने जब कट किया तो वो दो पार्ट में हो गया। उसको हमने उसका ऊपर का पोर्शन हटा करके ऊपर हमने दूसरे प्लांट का पोर्शन लगा दिया, और वो जब उसको बांध दिया उसके बाद क्या होता है, ये प्लांट नया ग्रो कर जाता है जिसमें दो एंड्स होते हैं, दो डाल निकली, जो एक ओरिजिनल प्लांट जिसका रूट था उसी की रही, और एक दूसरा जो हमने उसमें जॉइन कराया। तो हम क्या करते हैं, सेम स्पीशीज़ की दो वैरायटीज़ हम इस तरह से एक ही प्लांट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, you can see in grafting when we attach the two plants, what we do, we usually, this is the main plant and we have taken the other part of the plant and attach that plant with the plant that is main plant, and after the attachment we take some soil and cover that portion where the joint is present. In this way we usually do. Okay, so let's move. So in grafting, the art of joining parts of two plants in such a way that they grow as one plant is called grafting. You can see एक प्लांट था जिसको हमने डिटैच किया, इसका अपर पोर्शन जो है उसको सियॉन बोलते हैं और इसका डाउन पोर्शन जो है उसको स्टॉक बोलते हैं। इसको हम एक दूसरे से अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद हम देखते हैं उसको हम बाइंड अप कर देते हैं, जैसे कि अभी अभी जस्ट हमने मैंगो ट्री में देखा, इस तरह से बाइंड करते हैं और फिर बाद में वो एक न्यू प्लांट ग्रो करता है, एक सिंगल प्लांट ग्रो करता है जिसमें टू वैरायटीज़ होती हैं। इन दिस मेथड अ ट्विग और ब्रांच कॉल्ड सियॉन is detached from one plant and is placed over the cut stem called stalk of another plant, which has its own extensive root system under the soil. The scion and stalk are joined together. The stalk provided all the essential nutrient to the scion. The stalk is the downward portion which has root, and scion is the upward portion. The stalk has roots, that main plant body has roots, it provides the nutrition to the scion part. Okay, so here we have gone through the grafting. Now moving next to tissue culture. This is the fourth type of artificial propagation. Basically tissue culture में क्या होता है, प्लांट का जो हम ग्रोइंग पार्ट होता है उसको हम ले लेते हैं। जैसे एक प्लांट है, प्लांट का सबसे ग्रोथ वाला पोर्शन क्या होता है, सबसे टॉप का पोर्शन जहाँ पे प्लांट की एकदम ग्रोथ होती है। जैसे प्लांट है उसका जो टिप होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेल्स होती हैं। तो हम क्या करते हैं, उस सेल को वहाँ से थोड़ा सा प्लांट का पोर्शन डिटैच कर लेते हैं और उसको हम आर्टिफिशियल मेथड से, उसके हेल्प से हम एक नया प्लांट बनाते हैं। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, हमने प्लांट का टिप वाला पोर्शन लिया जिसमें ग्रोइंग सेल्स सबसे ज़्यादा हैं, ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, उसको हमने लिया और उसको हमने आर्टिफिशियल मेथड से हमने उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट एंड एवरीथिंग वी प्रोवाइड। सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं, पूरा मीडियम हम देते हैं और उसके हेल्प से हम नया प्लांट जब ग्रो कर देते हैं तो वो टिश्यू कल्चर होता है। आप फिगर में देख रहे होंगे हमने प्लांट का टिश्यू लिया, आप देख रहे होंगे जो पहला टेस्ट ट्यूब है उसमें टिश्यू लिया गया है और इसमें जो नीचे ब्राउन आपको दिख रहा है ये मीडियम है, मीडियम पूरा दिया गया है। कुछ दिन बाद क्या होता है, टिश्यू का एक मास बन जाता है, एक टिश्यू का मास बन गया सेवरल डेज़ के बाद, जिसको हम कैलस बोलते हैं, और उसको कुछ दिन और रखने पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे प्लांट्स आपको ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द टिश्यू कल्चर। लेट्स सी, this is a relatively modern method of artificial vegetative propagation. This is the modern method. In this method, a piece of tissue is cut from a desired plant and is kept in nutrient medium under controlled condition. Yes, cut from the desired plant. The piece of tissue is cut from the desired plant and it is kept in the nutrient medium. I have told you
This tissue grows into a mass called callus. Okay, the callus so obtained is placed in different nutrient medium. The callus is kept in different nutrient medium where it start developing plantlets. You can see here in the figure, these plantlets are buried into pot of soil to obtain new varieties of plant. These plantlets are grown in new pot where it develops into a new variety of plant. Okay, this technique is also called micro propagation. Basically टिश्यू कल्चर को हम माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं. टिश्यू कल्चर इज यूज टू प्रोपगेट ऑर्किड एंड क्राइसैंथेमम. ऑर्किड एंड क्राइसैंथेमम ग्रो करने के लिए बेसिकली ये मेथड यूज किया जाता है. नाउ वी विल मूव टू एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर. Since the tissue culture experiment is performed under a sterile condition, the chances of seed-borne disease are greatly reduced. बेसिकली क्या होता है, आप देख रहे हैं प्लांट के किसी पार्ट को लिया गया है और उसको ग्रो किया गया है एक मीडियम में, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस मीडियम के हेल्प से इसको सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं. तो यहाँ पे क्योंकि ये सीड से नहीं ग्रो कर रहा है तो सीड बॉर्न डिजीज़ होने के चांसेस इनमें कम होते हैं. Compared to other methods such as grafting, budding, etc., this is faster and efficient method. Yes, in comparison to grafting, budding, it is faster and efficient method. This technique can be used to generate high yielding hybrid variety that have special characteristics. Okay, plants of desired variety can be produced through tissue culture. Yes, we can grow desired plant variety with the help of tissue culture. Now we will move to disadvantages of tissue culture. Although there are many advantages of tissue culture, there are some disadvantages. Yes, now we will discuss some disadvantages. The process of tissue culture requires advanced level of skill and technology. Yes, for tissue culture, you know that we have micronutrients, macronutrients, then after we provide such a medium, so it needs skill. Okay, the plant produced as a result of tissue culture are comparatively costly. Yes, because we purchase the medium, we purchase the nutrients, artificial medium and other things for that. Okay, so this is comparatively costly. As the process is used to develop clones of a species, the genetic diversity is lacking. अगर हम क्लोन्स किसी स्पीशीज़ का बना रहे हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इसमें कम होगी. ओके, so here we have completed our disadvantages of tissue culture and also we have completed the vegetative propagation, natural and artificial. In the next lecture we will discuss sexual reproduction in plants. Okay, so till then stay safe, stay healthy. Your assignment work is write down the advantages and disadvantages of natural and artificial vegetative propagation, and you have to write the types of vegetative propagation. Till then stay safe, stay healthy. Thank you class.